اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ یہ دو آیات ہیں، اب اس کا ہم لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ، وا کا تو آپ کو مطلب پتہ ہی ہے، اور علامہ اس نے سکھائے یا اس نے سکھایا، آدم کو۔ اب آدم کو کیسے پتہ لگا؟ اس لیے کہ جو یہ لفظ ہے آدم، اس کا جو آخری حرف ہے میم، اس کے اوپر زبر ہے۔ جب کسی نام کے اوپر اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا۔ تو آدمہ کا مطلب ہے کہ آدم کے ساتھ کوئی کام کیا گیا ہے، یعنی آدم یہاں پہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے۔ تو علامہ اس نے سکھایا یا سکھائے، آدم کو الاسماء۔ آپ کو پتہ ہے الف لام ال جو ہے وہ تعریف کا ہے، جس کو ہم انگلش میں ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ اسماء اسم کی جمع ہے، یعنی خالی اگر اسم ہو تو اس کا مطلب ہے ایک نام۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، اسم، تو یہ اس کا مطلب ہے نام، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے اسماء۔ اور سکھائے آدم کو اسماء، بہت سے نام، کلہا، تو یہ بھی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، کلہ اور ہاں۔ تو کلہ کا مطلب ہمیں پتہ ہی ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کلہ کا مطلب سارے کے سارے، اور ہاں اس کے، یہ ہاں ضمیر ہے یا پروناؤن ہے، اور یہ اشارہ کرتا ہے اسماء کی طرف۔ تو اسماء جمع ہے، اور جمع کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے لیے جو پروناؤن ہے یا جو ضمیر ہے وہ مؤنث کی ہی استعمال ہوتی ہے۔ کلہا، اس کے سارے، یعنی کس کے؟ وہ جو تمام نام تھے، جو چیزیں پیش کی گئیں ان تمام کے نام جو تھے وہ بتا دیے، کلہا، اس کے سارے۔ تو اس کو میں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں، سارے اس کے، یعنی اس کے سارے جو بھی نام بتائے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیے۔ سما، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، سما بہت مشہور لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پھر، یعنی ایک کام کیا، وہ کام مکمل ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک اور کام کیا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ سما ایک ایسے کام کو کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو پہلے کام ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک اور نیا کام کیا، اس کو ہم کہتے ہیں سما، یعنی پھر۔ اردہم، تو یہ بھی دو سے مل کر بنا ہے۔ اردا، یعنی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا عرض کیا، یعنی آپ کو پیش کیا، تو یہ عربی میں بھی ایسے ہے، ارادا یعنی اس کے سامنے رکھا، اس کو پیش کیا۔ اور ہم مطلب ان سب کو، پھر پیش کیا ان کو، کن کو؟ ان تمام ناموں کو۔ پہلے نام سکھائے، علامہ آدم الاسماء کلہا، اس کے تمام نام، یعنی وہ تمام چیزیں جو خدا نے آدم کے سامنے رکھی ان کا نام سکھائے، کلہا، ان کے سارے کے سارے نام۔ ثم، پھر، ارادہ ہم، عرض کیا، یعنی اردو میں تو ہم آج ہی سے کہتے ہیں نا عرض کیا، ویسے اس کا مطلب ہے پیش کرنا۔ تو پھر پیش کیا ان کو، ارادہ ہم، یعنی ان تمام چیزوں کو جن کے نام اللہ نے آدم کو سکھائے تھے، پھر ان کو پیش کیا۔ علی الملائکۃ، تو اللہ کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، اوپر، یہاں پہ فرشتوں کو، تو اوپر فرشتوں کو میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اوپر فرشتوں کے۔ اور یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو اللہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حرف جر، بہت سے حرف جر ہیں، اس میں سے اللہ ایک ہے۔
تو जब हर्फ जर किसी लफ्ज से पहले आता है तो उस लफ्ज के आखिरी हर्फ के नीचे जेर डाल देता है, इसलिए इसको हर्फ जर कहते हैं। जो जेर है ना ये वाला, इसको जर कहते हैं। तो इसको हर्फ जर इसलिए कहते हैं कि जब ये आएगा तो अपने से अगले लफ्ज यानी अला है, उसके बाद अगला लफ्ज है अल मलाइका, उसका आखिरी हर्फ है ता, उसके नीचे जेर डाल दी, अल मलाइकाती, ऊपर फरिश्तों के। तो खुदा ने आदम को सारे नाम सिखाए। उसके बाद फिर एक और काम किया, और ये किया कि उन तमाम चीज़ों को पेश किया ऊपर फरिश्तों के, यानी जैसे कहते हैं ना, मैंने आप पर अर्ज किया, मैंने आपको पेश किया, तो उनको सामने रखा। फ काला, फ काला। अब ये जो फ है, यहाँ पे मैंने इसका तर्जुमा किया फिर। आमतौर पे इसका मतलब होता है पस, देयरफॉर, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है फिर। अब ये जो फ है, इसका मैंने पहले आपको बताया था, आपको याद होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ याद दहानी के लिए। फ एक ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो पिछले काम का नतीजा हो। यानी एक स्टूडेंट ने पढ़ा, बस वो पास हो गया। अब उसका पास होना नतीजा है उसकी मेहनत का, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो बस वो फेल हो गया, यानी उसका फेल होने का जो नतीजा है वो उसके ना पढ़ने का नतीजा है, उसके ना पढ़ने की वजह से है। तो ये फ़ा जो है, कि आप हमेशा याद रखें कि फ़ा ऐसे जगह पे इस्तेमाल होता है, ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो पिछले काम का नतीजा हो। तो अब यहाँ पे तो खुदा ने आदम को नाम सिखाए सारे के सारे, फिर उनको उसके नाम सिखाने के बाद एक और काम किया कि उनको फिर पेश किया अलल मलाइकाते, फरिश्तों के ऊपर। फ काला, फिर यानी पेश करने के नतीजे में फिर उसने कहा, फ काला, बस उसने कहा। तो आपको पता है काला का मतलब है उसने कहा, ये माजी का सीगा है और वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए। फ काला, बस उसने कहा, फिर उसने कहा, अम्बेऊ नी। तो अम्बेऊ नबा से निकला है, नबा का मतलब होता है खबर देना, जैसे नबी खबर देने वाला होता है। तो ये फेल अमर है, अम्बेऊ, यानी तुम सब के सब खबर दो, तुम सब के सब मुझे बताओ, तुम सब के सब बताओ, तुम सब के सब खबर दो, नी मुझको। तो ये जब इस तरह आएगा नी, या जो ये यहाँ है वो आएगा, तो उसका फिर अपनी तरफ इशारा होता है। अम्बेऊ नी, खबर दो तुम सब मुझे, अम्बेऊ नी, तुम सब खबर दो मुझे। किस चीज की खबर? बे अस्माए। यहाँ पे आपको पता है कि बे का मतलब होता है साथ, यानी, लेकिन यहाँ पे है नामों की खबर दो, बे अस्माए, नामों की, हाउलाए, ये सारे के सारे। हाउलाए जो है वो हाजा या हाजे की जमा है, दोनों के लिए हाउला ही आएगा। हाजा हो यानी मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, उन दोनों की जमा हाउलाए है। इसको कहते हैं इसमें इशारा, यानी किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं इसमें इशारा। तो दिस, दैट, इस तरह के ये जो अल्फाज है उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव नाउन। तो वो उसको पॉइंट करता है उसकी तरफ। तो हाजा ये मुजक्कर, हाजे ही ये मुअन्नस, और इनकी जमा होगी हाउल। अगर बहुत सी चीजें हैं तो हम उनसे कहेंगे ये सब, तो हाउलाई। तो बस अल्लाह ने यानी जब पेश किया तो फ़ा काला, फिर उसने कहा, यानी ये पेश करने के नतीजे में सवाल किया जा रहा है। पेश ना करता तो ये फ़ा नहीं आना था यहाँ पे, अगर एक नया काम होता तो फिर आता सुम्मा। तो फ़ा काला, फिर उसने कहा, यानी बस फिर उसने कहा पेश करने के बाद, अम्बेऊ नी, खबर दो तुम सब के सब मुझे, नी, अम्बेऊ नी, बे अस्माए हाउलाए, इन तमाम नामों की, नामों की इन सब के, यानी वो जो जितनी भी चीजें पेश की थी उनके कहा कब इनके नाम बताओ। इन कुंतुम सादिकीन, आपको मैंने पहले बताया था, आपको याद होगा, इन अगर के लिए इस्तेमाल होता है, और ये हाल और मुस्तकबिल, उसमें ये जो लफ्ज होता है अगर, उसके लिए इन इस्तेमाल होता है। अगर माजी का हो तो फिर होता है लौ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछले अस्बाग में है। तो इन का मतलब है अगर, कुन तुम सब के सब हो, स्वादिकीन, सच्चे, यानी अगर तुम सब सच्चे हो तो फिर तुम इन सब के नाम बताओ। यानी मैंने
اللہ ताला ने आदम को नाम सिखाए, फिर फरिश्तों को कहा, उनके सामने पेश किया, फिर उनको कहा कि अब खबर दो मुझे बे अस्माए हाउलाए, 7 नामों के इन सब के, यानी इन सब के नामों की मुझे खबर दो। हाउलाए, अब आपको पता लग गया हाउलाए जमा के लिए होता है। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। कालू, तो उन्होंने कहा, कालू उन्होंने कहा, यहाँ देखें यहाँ था काला उसने कहा, ये माजी के लिए है, काला उसने कहा, कालू उन्होंने कहा। ये काला वाहिद के लिए है, ये कालू जमा के लिए है, और दोनों फेल माजी हैं। और ये तो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ये मुज़क्कर मुन्नसब के लिए इस्तेमाल होता है। कालू, तो उन सब ने कहा, सुबहाना का, पाक है तू। तो ये भी आपको इल्म है, का जो है वो अगर आखिर में आए किसी लफ्ज के तो इसका मतलब होता है तेरा या तेरे या तू। तो सुबहाना पाक है, का तू, ला नहीं है, इल्मा इल्म, ल ना लिए हमारे, ला का मतलब है लिए, फॉर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर। और ये मैंने पहले आपको बताया था, ला लाम के ऊपर अगर जबर हो या लाम के नीचे जेर हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। और एक और जो लाम जबर ला इस्तेमाल होता है वो ताकीद के लिए होता है, उसको कहते हैं लाम ताकीद। लेकिन यहाँ पे हम उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे उसका क्या मतलब है। तो ला ना लिए हमारे, तो वो कहते हैं सुबहाना का ला इल्मा लना, तू पाक है और नहीं है इल्म हमें या हमारे लिए या हमको। क्योंकि मैं लफ्जी तर्जुमा पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं एक एक लफ्ज का तर्जुमा करता हूँ ताकि आपको उस लफ्ज का तर्जुमा मालूम हो तो आगे भी आपको आसानी होती है। इल्ला सिवाय, ये भी बड़ा मशहूर लफ्ज है, उर्दू वाले सब जानते हैं। ला भी सब जानते हैं, जो मैंने बताया था यहाँ पे, वाह वो भी सब जानते हैं। इल्ला का मतलब होता है सिवाय, यह सब जानते हैं। माँ, जो कुछ भी, और ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि माँ के 3 मानी होते हैं। एक होता है ये जो जैसे यहाँ पे लिखा है जो कुछ, एक मानी होता है नहीं, और एक मानी होता है इसका क्या। तो क्या, नहीं और जो कुछ, ये 3 मानी है। और मैंने पहले भी बताया था कि तीनों माने में से जो एक कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, सियाक व सबाक के लिहाज से, उस जुमले की साख्त के लिहाज से, उसके मानी के लिहाज से क्या है, वो फिर हम उसका तर्जुमा वहां पे वो करते हैं। तो इल्ला सिवाय उसके, माँ जो कुछ के, या जो कुछ भी, अल्लमता ना, अल्लमता मीन्स तूने सिखाया, ठीक है। यहाँ पे कहा ना अल्लाह ताला ने अल्लामा, उसने सिखाया, यहाँ पे है अल्लमता। ये जो अल्लामा है ये माजी का सीगा है और मुज़क्कर गायब के लिए है, यानी उसने, एक हस्ती की बात की जा रही है, एक ज़ात की बात की जा रही है, और ज़ाहिर है कि वो अल्लाह ताला है, और वो खुद ही कह रहा है कि वह अल्लामा, और उसने सिखाई, यानी किसने, अल्लाह ने। यहाँ पे फरिश्ते कहते हैं अल्लमता, अल्लमता का मतलब होता है तूने सिखाया, और ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और ये भी माजी का सीगा है अल्लमता। अगर ये कहना हो कि जिसने सिखाया है वो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, तो फिर यह होता अल्लमती, ये ता के ऊपर ता के नीचे जेर आ जाती, अल्लमती, ए मुअन्नस ए औरत तूने सिखाया। और अगर ये कहा जाना हो कि मैंने सिखाया, तो फिर हम कहेंगे अल्लम तो, मैंने सिखाया। तो ये फ़र्क आप देख लें, आगे जैसे जैसे आयात आती जाएंगी इस्तेमाल की, वो फिर आपको पता लग जाएगा। तो अल्लमता का मतलब है तूने सिखाया, किसको सिखाया, ना हमको। देखिए यहाँ पे भी था ला ना, लिए हमारे, ला हमारे लिए, ना हमारे, अल्लमता ना, तूने सिखाया हमें, अल्लमता ना, तूने सिखाया हमें, इन्ना का अंता। अब यहाँ पे इन्ना का जो है वो इन्ना और का, इसका मरकब है। यहाँ पे था सुबहाना का, देखा ना आपने, सुबहाना का, पाक है तू, यह इन्ना का, इन्ना आपको पता ही है मतलब यकीनन, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन्ना और अन और अन्ना, और यहाँ पे था इन, तो इन का मतलब है अगर, हाल और मुस्तकबिल के लिए
इन्ना का मतलब है यकीनन, इन्ना का यकीनन तू, तो इन्ना का मतलब होगा यकीनन तू। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब इन्ना का आ गया है कि यकीनन तू, तो फिर अंता क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि अंता का मतलब भी है तू। तो अगर हम इसको लफ्जी तर्जमा करेंगे तो बनेगा इन्ना का यकीनन तू तू। ये 2 दफ़ा आ जाएगा ना, तो इन्ना का अंता। तो ये एक जुमले में ज़ोर डालने के लिए होता है। तो इसका तर्जुमा हम करेंगे यकीनन तू ही है। जैसे हम कहेंगे ना कि वो किसी को कुछ काम के लिए कहना हो, तो वो कहेंगे कि मैंने नहीं करना, तो हम कहेंगे नहीं तूने ही करना है, या तूने ही किया होगा और तू ही इस काबिल है। तो वो जो ही हम इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब होता है कि ये काम ख़ुसूसियत के साथ वो ही करेगा या उसी ने किया होगा। अगर हम किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा रहे हों, तो वो कहे मैंने तो नहीं किया, तो हम कहेंगे नहीं तूने ही किया है। हम ये नहीं कहेंगे तूने किया है। तूने किया है उसमें वो ज़ोर नहीं आता, तूने ही किया है। इन्ना का अंता का मतलब होता है यकीनन तू तू, और ये बामुहावरा बनेगा यकीनन तू ही है अल अलीमुल हकीम, इल्म रखने वाला और हिकमत वाला। तो ये इन अल्फाज के जो इस आयत में इस्तेमाल हुए हैं, उसका मैंने आपको लफ़ज़ ब-लफ़ज़ तर्जुमा बता दिया है। उम्मीद है कि आपको इसमें समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।